credit discount. We are paying less. This is income for our business. Credit. Kitna credit? 44,000. We are paying 1,000 less. It is also income. Then cash credit, discount credit. देखो एक बार क्लियर है ये बात. Yes. Is there any problem in cash discount and trade discount? हाँ. अपन को कम पैसा देना पड़ रहा है. अपन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. लॉस कैसे हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. और प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. Goods sold to Ramesh, goods sold to Naresh, rupees 1 lakh, 5% trade discount, second यही लिखो 50% paid immediately and 5% discount allowed. Goods sold to Naresh rupees 1 lakh, 5% trade discount allowed, 50% he paid immediately and allowed him 5% discount. At the time of payment, any discount is allowed which is called cash discount. First entry you have to pass for the goods sold to Naresh on credit rupees 1 lakh. सबसे पहले goods sell कर. When goods are sold to Naresh, two accounts are Naresh and another in goods sold means sales. Naresh is receiver, debit. Sales our income, nominal account, credit. What should be the amount? Less trade discount. 1 lakh less 5%. हाँ? क्या कर रहे हैं? 1 लाख में से लेस करो 5,000. 95,000 फर्स्ट. अब लिखा है 50% ही है. 50% तो उसने हाथों हाथ ही दे दिए. अगर हाथों हाथ रिसीव हुआ तो क्या कौन कौन सा अकाउंट हो गया? एक कैश, डिस्काउंट भी दिया. Any discount which is allowed at the time of payment is called cash discount and it is recorded in the books. Discount. And who is giver? Naresh. Cash is real. Discount is nominal. Naresh is personal. 50% he paid immediately. तो जितना है अमाउंट उसका 50%. 95,000 it's 50%. 47,500. इतना अमाउंट तो वो गिवर हो गया. नरेश इज गिवर, क्रेडिट 47,500. 5% डिस्काउंट. किसका 5% कैश डिस्काउंट?
ये 5% कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करना है? यानी 47,500 का 5%, इसका 5% निकालो। 2375, तो डेबिट 2375 कैश, इसको छोड़कर रिमेनिंग 95% कैश में आएगा। तो 47,500 लेस 2375 521 45,125 cash comes in, debit 45,125. तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, नरेश क्रेडिट। यस, लायबिलिटीज कैसे होगी? ये तो असेट्स है हमारे लिए। तो अपन अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, नरेश की या अपने बिजनेस की? तो फिर हम तो हमारा सोचेंगे कि नरेश का सोचेंगे? हम तो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। यस, करें आगे। नेक्स्ट, जर्नल। Write down about the journal. Write down about the journal. It is elementary books of accounts. It is elementary books of accounts. When a business transaction takes place, when a business transaction takes place, it is recorded in a book. It is recorded in a book which is called journal. Which is called journal. In another words, we can say, in another words, we can say it is first step, it is first step towards accounting. It is first step towards accounting. Towards, it is first step towards accounting. Now I want to explain. When a business transaction takes place, first we have to record it in a book which is called journal. जैसे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन, सपोज गुड सेल किया, और वी कैन से दिस इज फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है अकाउंटिंग की तरफ, जहां पर सबसे पहले लिखते हैं। बिजनेस अगर छोटा होता है तो हम एक सिंपल डायरी में लिख लेते हैं। जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता है वैसे हम बुक्स रखते जाते हैं। तो जर्नल दैट इज एलिमेंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पर सबसे पहले अपन किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ
format of journal. Date, particulars, LF, debit and credit. First column, date, in which we have to write the date of transaction. Suppose goods purchased on April 1st, then date is 2020 April 1st. Particulars, in which we have to write down the journal entry. LF, लेजर फोलियो, इसका नाम है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो एक तरह से इंडेक्स है। हमारी बुक्स में, हमारी अकाउंटिंग में दो बुक्स होती हैं, एक जर्नल एक लेजर। पहले अपन जर्नल बनाते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं लेजर, जहां से जर्नल अपनी प्राइम बुक है, जहां से अपन एंट्री लेकर जाते हैं लेजर में। अब यहां पर इंडेक्स यानी पेज नंबर लिखते हैं। उस दूसरी बुक में कहां ले गए, वहां पर अगर 201 पेज पे ले गए तो यहां लिखेंगे 201 नंबर। अब यहाँ का पेज नंबर सपोज 98, वहां का 205, तो यहाँ का पेज नंबर वहां लिखेंगे, वहां का पेज नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं लेजर का पेज नंबर, इसलिए कहलाता है लेजर फोलियो। जब लेजर बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे जर्नल फोलियो, यानी जर्नल का पेज नंबर लेजर में, लेजर का पेज नंबर जर्नल। ये बात क्लियर है? ये लेजर फोलियो क्लियर है क्या? एलएफ, आवाज आ रही है सबको? हाँ बोलो। पर्टिकुलर में अपन प्राइम जो अपनी एंट्री होती है, जो अपन परचेज करने की, सेल करने की, कैपिटल, सैलरी पे किया, ये सारी मेन डिटेल लिखते हैं पर्टिकुलर्स में, जहां पर अपन एंट्रीज करेंगे। अब आता है अमाउंट के दो कॉलम है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में लिखते हैं। कल तक और आज तक अपन ने जो कैश डेबिट कल किया अपन ने लास्ट क्लास में एंट्री, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसा किया अपन ने। कैश रियल अकाउंट डेबिट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। सपोज इट इज 50,000 एंड 50,000, अमाउंट दे रखा है 50। कौन सा अकाउंट डेबिट है? अरे इस एंट्री में कौन सा? कैश डेबिट। जब भी हम एंट्री करेंगे सबसे पहले डेट, सपोज ईयर इज 2020, डेट सपोज इट इज मई 1st, तो मई 1st। अगर 1 मई का ट्रांजैक्शन है तो मई 1st। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेबिट। देखो डेबिट कौन सा अकाउंट को किया है? कैश डेबिट। तो क्या लिखेंगे? कैश, बिल्कुल यहां से अड़ा के लिखना है कैश। A/C का मतलब अकाउंट, जिसको डेबिट करते हैं उसके सामने डेबिट लिखते हैं, ये कैश अकाउंट डेबिट। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट। 50,000 डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे 50,000। पहले एक लाइन समझ में आई क्या? पहले सबका क्लियर है यहां तक? अब जिसको क्रेडिट करना है उसको मिडिल में लेना है। ये क्या है? यहां से मिडिल में ये, और जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते, उसके पहले टू लगा देते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहां लगा। अब क्रेडिट किसको किया इस ट्रांजेक्शन में?
ये किसी का मैसेज था अभी, किसका मैसेज? यस, एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग? बेटा बोलो कौन है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। माइक को खोलो और बात करो, अपने माइक को अनम्यूट करो और बात करो। ये जिसका मैसेज था, मैसेज चला गया वापस। अर्चना, यू वांट टू आस्क समथिंग? यू कांट म्यूट। LS नहीं है, ये LF। दिस इज LF, लेजर फोलियो। दिस इज द पेज नंबर, लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ ledger, that is another register, another book. अर्चना ये तुम्हारे लिए है। ओके बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। अब जिसको क्रेडिट करना होता है उसके टू, अब इसमें क्रेडिट किसको कर रखा है? कैपिटल, तो यहां आएगा टू कैपिटल। अब जिसको क्रेडिट किया उसका अमाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, सेम 50,000। अब यहां पर इसका डिटेल लिखना होता है जिसको हम कहते हैं नरेशन। नरेशन मींस डिटेल ऑफ जर्नल एंट्री, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। ये किसकी एंट्री है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सब में लगाना है बीइंग। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ड्रॉ द लाइन। देखो पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है क्या सबका? कुछ पूछना पहले इसमें? हाँ, डेबिट में लिखेंगे अमाउंट, डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में और टू वाले का अमाउंट क्रेडिट में। अब देखो गुड्स परचेज फॉर कैश, एक और लिख लेते हैं, बंद कर देंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज इज नॉमिनल, कैश रियल, डेबिट एंड क्रेडिट 10,000। अब डेबिट किसको किया? परचेज, मई 10, परचेज अकाउंट डेबिट, बीच में आएगा टू, क्या लिखेंगे? टू कैश, अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम। यहां लिखेंगे बीइंग, गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक, जब पेज भर जाएगा तो नीचे लिखेंगे हम लोग टोटल। लास्ट में लिखते हैं हमेशा C/F, कैरी फॉरवर्ड। पेज को अगले पेज, टोटल को अगले पेज पे ले। टोटल क्या हो गया? 50 और 10 60,000, यहां पे भी 60,000। हो गया? अब कल बात करेंगे इसके आगे, ठीक है? ओके बेटा।